Pragya Shravan welcome you all on behalf of the entire CIMB family to the awareness program on MSME Sustainable Z certification scheme. This event has been organized by Startup Incubation Center, CIMB Business Incubation and Innovation Foundation under the aegis of CIMB. On this occasion, I would like to accord a very warm welcome to our Honorable Chief Guest, Shri Pradeep Kumarji, Director MSME DFO Patna. I would also like to accord a very warm welcome to our Honorable Guests come speakers, Shri Naveen Kumarji, IETS Assistant Director MSME Patna, Shri S.K. Verma-ji, Assistant Director MSME DFO Patna, Dr. Hanif Mewati-ji, Director KVIC Patna, and Shri Pradeep Kumar Jha-ji, Manager SIDB Patna. I also heartily welcome Professor Dr. Rana Singh-ji, Director CIMB, Shri Kumud Kumar-ji, Chief Administrative Officer CIMB, and Professor Dr. Rajiv Verma-ji. And last but not the least, all the participants and esteemed guests. Before we start, I take this opportunity to brief our honorable guests about our institute, a brainchild of our Honorable Chief Minister, Shri Nitish Kumar, who also happens to be the chairman of the Board of Governors of the institute. CIMB was established in 2008 as an autonomous institute on the lines of IIMs with the active support and help from Government of Bihar to resurrect the educational glory of Bihar. Within a short span of time, the institute has achieved its international and national laurels and has secured a position in the top 125 management institutions in the country under the NIRF ranking 2022 conducted by Ministry of Education, Government of India. I would now request Ms. Anjali to present sapling to Shri Pradeep Kumarji. I would now request Ms. Khushbu to present sapling to Shri S.K. Verma-ji. To Shri Naveen Kumarji. I would now request Ms. Khushbu to present sapling to Shri Naveen Kumarji. I would now request Ms. Anjali to present sapling to Shri Pradeep Kumar Jha-ji. So I would now request Ms. Anjali to present the sapling to our director, Professor Dr. Rana Singh. I would now request Ms. Khushbu to present sapling to our Chief Administrative Officer, Shri Kumud Kumarji. May I now request Professor Dr. Rajiv Verma-ji to deliver the welcome address. Good afternoon all. On behalf of CIMB and CIMB Business Innovation and Incubation Foundation, I, Professor Rajiv Verma, it's a very warm welcome to all the dignitaries and guests who are present for this particular event. I accord warm welcome to Mr. Pradeep Kumarji, Director MSME, Dr. Hanif Mewati-ji, Director KVIC, Shri Sanjay Kumarji, Assistant Director
MSME, Shri Naveen Kumar ji, Assistant Director IEDS, Shri Pradeep Kumar Jha ji, Manager SIDBI, who is present with us online. I also put forward my warm welcome to Dr. Rana Singh ji, Director CIMP, Shri Pramod Kumar ji, Administrative Officer CIMP, and all the participants who are present with us for this particular event. This particular event is very special in many sense. Today we are going to discuss about the applications and processes regarding Z. Now Z term is all about the sustainability of supply chain management, which ensures zero defect and zero effect. Since ages we have learned about so many techniques about ensuring efficiency in supply chain management. Say it Six Sigma, say it Kaizen, say it JIT. But now India is also in a position to have its own certification to ensure effective supply chain management and sustainable practices that can be provided under the umbrella of MSME. And this program ensures to enlist all these practices into the formal programs of MSMEs which are being offered by various departments. So, in totality, this program, which ensures zero defect and zero effect, will let you learn about those techniques that ensures certification under this and will surely ensure sustainable practices that will lead you towards productivity maximization and optimization of resources. So with these words, I once again thank MSME, their team, who had taken their time to deliver this important subject to our participants, who are largely our MSMEs, micro, small and medium enterprises, which are being represented in an offline and online mode. Along with this, many students are also connected with this, because I think this is the first time when we are moving beyond the conventional subjects or conventional topics which we learn in our operation management, that talks about Kaizen, that talks about JIT, and now we are in a position, India is in itself in a position to learn about our own techniques, our own certification programs. So it's a very happy note in which we are here. So thanks you once again, sir, for your presence, and everybody, thank you. And we wish that this is going to be an interesting education journey to all of you. Thank you. Thank you, sir. Now, may I request our honorable guest come speaker, Shri S.K. Verma ji, to deliver his address and brief us about the program. Thank you very much. Honorable dignitaries on the dais, Chief Guest of Shri Pradeep Kumar, Director MSME of Patna, guest of honor Dr. Professor Rana Singh, Director of this institution, our distinguished guests, Dr. Hanish Nevati, Director KVIC Patna, my senior colleague Sri Naveen Kumar ji, Assistant Director, Sri Pramod Kumar ji, Chief Administrative Officer, CIMP, Professor Dr. Rajiv Verma, CIMP, other guests present in this esteemed house, and the participants who have joined this program through web links provided by us. If we could recall the first speech of our Honorable Prime Minister from the Lal Killa in 2014, 15th August 2014, then we could remember that what was his clarion about this zero defect and zero effect policy. He rather invited all the fellow citizens of this country that हम कुछ भी ऐसा बनाए, this was the line of his speech, his speech, that हम कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो विश्व के बाजार में किसी भी कोने में अगर जाए तो खराब क्वालिटी या गंदी क्वालिटी बोल करके वो हमारे देश में वापस नहीं आनी चाहिए, उसकी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। और एट द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको बनाने में प्रकृति का हम दोहन करते हैं, प्रकृति को जो प्रतिकूल प्रभाव देते हैं वो कितना कम से कम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, बेंचमार्क है, हम उसको नियर अबाउट उसको टच करने की कोशिश करें।
और 2014 में जब ये क्लैरियन पीएम के द्वारा कॉल किया गया था, तब हमारे मंत्रालय ने इसको एज अपॉर्चुनिटी अडॉप्ट किया कि हम कैसे हम इस ड्रीम को हम लोग एक रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर हमारी स्कीम की कॉन्वर्सेशन शुरू हुई। और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ हम लोगों ने उस प्रोग्राम को फॉर्मुलेट किया, और इसमें HCL, DML, सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ UCI की टीम ने इसके साथ कंसेप्चुलाइज किया, और एक जेड सर्टिफिकेशन, जेड जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, इस कंसेप्ट की शुरुआत की गई। और यह जब बन के तैयार हुआ तो इसे पायलट स्टेज में 2016 में इसकी शुरुआत की थी, इस जेड सर्टिफिकेशन स्कीम की, जेड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की। और जब पायलट स्टेज की पायलट टेस्टिंग हुई इस स्कीम्स की, तो आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि DHEA जैसी ऑर्गेनाइजेशन इसमें फेल कर गई, जिसके पैरामीटर इतने स्ट्रिंजेंट थे, इतने टफ थे कि अगर क्वालिटी पे अगर थोड़ा सा भी अगर आपकी कुछ दाएं बाएं होता है तो आप उसकी पहले 5 इसमें सर्टिफिकेशन हुआ करते थे, सिल्वर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड एंड प्लैटिनम। अब आज के दिन फिलहाल हम लोग 3 सर्टिफिकेशन के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि 1 साल पहले इसको फिर से ओवरहॉलिंग करके हम लोग उसको सस्टेनेबल स्कीम में लेके कन्वर्ट किए हैं, चूँकि वो 5 पैरामीटर 5 सर्टिफिकेशन करने में बहुत सारी MSME सक्सेस नहीं हो पा रही थी। तो यह जो आज का प्रोग्राम हमारा है, हम उस जेड जर्नी को भी जानेंगे कि कैसे हमारी शुरुआत हुई। इस जेड सर्टिफिकेशन, हमारी जो जेड सस्टेनेबल जेड सर्टिफिकेशन की स्कीम्स है, इसमें हमारे क्या क्या पैरामीटर्स हैं। और जेड सर्टिफिकेशन बेसिकली इस कंसेप्ट के साथ भी लाया गया था कि बाहर बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बट उनको क्वालिटी की डाउट है। बहुत सारे ऐसे आप लोग एक बात को देखेंगे कि डिफेंस के प्रोडक्शन पे हम आज भी आत्मनिर्भर नहीं हैं। डिफेंस में हमारे जितने वेपन्स आते हैं, जितने हमारे ऐसे कंज्यूमर्स हैं, बहुत कुछ इंपोर्ट पर हम लोग डिपेंडेंट हैं। जेड एक ऐसा हमें पाथवे प्रोवाइड करता है जो हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की ओर पुश करता है, और बहुत सारे ऐसे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं जिसका हम लोग सब्स्टिट्यूट इंडिया में तैयार कर सकते हैं, और उसके लिए जेड सर्टिफिकेशन बहुत ही मैंडेटरी है। तो जो 50 पैरामीटर्स के साथ जेड की जर्नी शुरू हुई थी MSMEs के लिए, जिसमें मिनिमम 30 पैरामीटर्स पे तो उनको असेस करना ही होता था, उस 30 पैरामीटर में भी बहुत सारे MSMEs सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। और अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, डिफेंस के सप्लायर बनना चाहते हैं, तो आपको अनदर उस 50 के अलावा अनदर 20 पैरामीटर्स को और अटेन करना होता था। ये हम इस सस्टेनेबल स्कीम से पहले की बात है। तो ये बताया गया हम लोगों को कि जब बाहर के जितने इन्वेस्टर्स हैं वो तो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, लेकिन हम लोग क्वालिटी एश्योर नहीं कर पा रहे हैं। और जेड कहीं ना कहीं उन्हें ये थर्ड पार्टी एश्योरेंस देता है कि जो जेड सर्टिफाइड MSMEs हैं वो यहाँ पे क्वालिटी कॉम्पिटेंट हैं। और जेड जैसे आपको बताता हूँ मैं, सुंदरम फास्टनर एक ऐसी MSMEs है जिसका LC लगभग 1 साल पहले खुलता है। क्यों खुलता है? कि उसका नाम क्वालिटी के लिए डॉक्टर डेमिंग अवार्ड्स वो जीत चुके हैं। इंडिया में ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं, बहुत सारे ऐसे MSMEs है बड़ी कंपनियों के अलावा जो क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, उनके प्रोडक्ट में कंप्लेन लगभग मिल, वो उनका कंप्लेन हैंडलिंग जो है PPM में जाता है, उन्होंने 6 सिग्मा एवं 7 सिग्मा अटेन कर लिया है। तो यह जो जेड सर्टिफिकेशन का हमारे स्कीम्स हैं, ये जेड सर्टिफिकेट हमें पुश करता है कि जितने भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है या क्वालिटी के लिए जो भी हमें अचीव करना है, जो भी हमें अटेम्प्ट लेने हैं, जो भी हमें टूल्स अडॉप्ट करने हैं, अगर हम सबको अगर एक अम्ब्रेला में लेके आते हैं तो हम जेड की जितने कंप्लायंसेस उनको कहीं ना कहीं कंफर्म करते हैं, और साथ ही साथ हम उसमें सर्टिफिकेशन पे जाते हैं। अब आपको मैं इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा, उसके बाद हमारे सीनियर कलीग नवीन कुमार जी उसमें प्रेजेंटेशन में विशेष प्रेजेंटेशन करेंगे। 3 पैरामीटर्स के साथ 3 सर्टिफिकेशन के साथ ये स्कीम हमारी इम्प्लीमेंट में पहली है हमारी ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन। ब्रॉन्ज के लिए हमारे पास जस्ट 5 क्राइटेरिया है। 5 क्राइटेरिया पे अगर आप कंफर्म करते हैं आपको जेड की ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन ऑन द स्पॉट मिल जाती है, और उसकी कॉस्टिंग सिर्फ 10,000 रुपये है। उसके बाद अगर आप सिल्वर पे जाते हैं, सिल्वर के लिए आप अटेम्प्ट करते हैं, सिल्वर के लिए आपको जस्ट 14 क्राइटेरिया को फुलफिल करने हैं। अगर वो हो जाते हैं तो उसमें साइट असेसमेंट ऑप्शनल है, और साइट असेसमेंट के बाद आपको अगर आपको कोई NC लगता है, नॉन कन्फॉर्मिटी आती है, तो QC आपको टाइम देता है उसको कंप्लाई करने का, और अगर आप उसे कंप्लाई करते हैं तो आप सिल्वर के लिए एलिजिबल होते हैं, और सिल्वर के लिए भी मिल जाते हैं आपको। और उससे ऊपर है गोल्ड सर्टिफिकेशन। गोल्ड सर्टिफिकेशन के लिए आपको अनदर 6 पैरामीटर मतलब 20 पैरामीटर्स, तो मैक्सिमम 20 पैरामीटर्स जो 50 पैरामीटर्स के साथ थी वो 20 पैरामीटर्स में आकर के अभी काफ़ी अटेनेबल हो चुकी है। और अगर हम जेड सर्टिफिकेशन को अगर अडॉप्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग अपनी क्वालिटी को, अपने प्रोडक्ट क्वालिटी को कहीं हद तक कहीं क्वांटम जंप दे सकते हैं प्रोडक्ट में, हमारी मार्केटिंग भी बढ़ सकती है। और आपको एक बात मैं और शेयर करना चाहूँगा इसके साथ
कि जितने जेड सर्टिफाइड एमएसएमईज हैं उसमें हर एक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयूज, इवन बैंक्स कुछ ना कुछ एडिशनल बेनिफिट दे रहे हैं, अनाउंस किया है उन्होंने, जिसके बारे में हम लोग आपसे टेक्निकल सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो मैं चूंकि विशेष ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत सारे स्पीकर्स हैं और हम लोग प्रेजेंटेशन में इन चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। तो दिस वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Now, may I request our honorable guest come speaker, Shri Naveen Kumar ji, to deliver his address. Respected Sri Pradeep Kumar, IDS Director MSME of Patna, Dr. Rana Singh, Director CIMP, Patna, Dr. Hanif Mewati, Director KVIT, Patna, Professor Dr. Rajiv Verma, CIMP, Sri Sanjeev Kumar Verma ji, my colleague Assistant Director, Sri Kumud Kumar, CIMP, और यहाँ उपस्थित सभी उद्यमी, सभी पार्टिसिपेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, मैं MSME DFO की ओर से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और आप बताना चाहता हूँ कि जिस विषय पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं वह विषय, जैसा कि वर्मा जी ने बताया, MSME सस्टेनेबल जेट सर्टिफिकेशन की बात हम लोग करने जा रहे हैं। और भारत सरकार की MSME मंत्रालय की यह स्कीम है जो कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली के साथ ज्वाइंट वेंचर में भारत सरकार ने लॉन्च की है, जिससे कि हमारे जो MSME है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, उनको कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके, उनकी क्वालिटी और इम्प्रूव हो सके और उनको एक इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग पहचान दिलाना चाहते हैं। इसके लिए भारत सरकार सर्टिफिकेशन लेवल पे भी सब्सिडी दे रही है। उसके साथ साथ जेट सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद भी बहुत सारी फैसिलिटीज दे रही है, जो मैं आपको चर्चा करूंगा। और यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि 3 लेवल हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, और ये सब पैरामीटर्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि स्कीम को बहुत ही सरल बनाया गया है, जिससे कि हमारे देश में जितने भी MSME हैं वो पहले MSME जेट सर्टिफिकेशन पे रजिस्टर करें और रजिस्टर करते ही उनको 10,000 का रजिस्टर करके उनको प्लेस देना है। प्लेस देते ही 10,000 का वर्चुअल क्रेडिट उनके अकाउंट में आ जाता है और जब वो ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो वो 10,000 के क्रेडिट को इनकैश करके ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन फ्री मिल जाएगा। I need to say कि there is no charges for bronze certification। तो ये ब्रॉन्ज आपको फ्री मिल रहा है। अभी मैं दिल्ली गया था ट्रेनिंग लेने जेट सर्टिफिकेशन पे, तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इसमें बहुत मेहनत कर रही है और वहाँ पे बहुत सारे रिलेटेड इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। जो बात हो रही है पैरामीटर की, कि क्लीननेस होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, वो सारी चीजें, मतलब ब्रॉन्ज के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं चाहिए। Only you have to just upload some photographs through a mobile app। जेट का मोबाइल ऐप आपको डाउनलोड करना होगा और रजिस्ट्रेशन हम लोग अभी यहाँ करेंगे। जिनके पास जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है उसका रजिस्ट्रेशन हम करेंगे। रजिस्ट्रेशन फ्री है। ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन को हम फ्री इसलिए बोल रहे हैं कि 10,000 का चार्जेस आपको प्लेस देते ही 10,000 आपको मिल जाता है। सिल्वर है उसका 40,000 है, गोल्ड का 90,000। हम किसी भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में 1500 यूनिट जेट पे रजिस्टर हो चुकी है। आज की डेट में 17 लोगों को ब्रॉन्ज मिल चुका है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, हमारे डायरेक्टर साहब यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन टेक्निकल सेशन में आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या पैरामीटर है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। और जेट सर्टिफिकेशन स्कीम को जो एक नाम इसमें जुड़ा है सस्टेनेबल, आज के डेट में सस्टेनेबल इसको बनाया गया है
और हमारे MSMEs को एक क्वालिटी और इन्वायरमेंट फ्रेंडली, डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बनाने की उनको हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। मंत्रालय उनकी मदद कर रही है और हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. Now, may I request Dr. Haneef Mewati ji to deliver his address. Good afternoon, one and all. Shri Pradeep Kumar ji, the Sutradhar of this particular program, who extended support to their office to organize this program. This is called Awareness Program on ZED scheme. And the head of this institution, Director, Professor Dr. Rana Saha, present with us during the program. The Chief Administrative Officer, Kumar Singh ji, and assistant directors and their team from MSME DFO office Patna, faculty members of CIMP, students and prospective or potential entrepreneurs, incubators, and all those whose names I am not able to address from here. I would like to welcome all of you here in this program being organized by MSME DFO Patna, which is basically based on promoting entrepreneurship. Entrepreneurship, like this, provides a way to become, self-reliant. जिसके लिए आज आत्मनिर्भर भारत के बारे में बहुत सारी बातें बोली जाती हैं. So this has been, continuously going on or like developing its phases, its, जो इसका तरीका है, स्वरूप है, from ancient India. Many of the foreigners, many of the developing countries, they are seeking us on India to understand the best practices, especially for the adopting by us, especially in the field of micro entrepreneurship. जब माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप में किसी भी तरह के साइज के हम एंटरप्राइज की जब बात करते हैं तो ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो इंडिया में आज भी अडॉप्ट की जाती हैं. एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है और एक ऐसा करियर ऑप्शन है विच प्रोवाइड्स यू टू बिकम योर ओन बॉस, हु कैन जनरेट हिज ओन आइडियाज, who can generate income for his own, not for his own, but he provides direct or indirect employments to others. He also contribute in the GDP of the country, of the particular state or the particular local economy. So this is also a kind of patriotism through which we can opt a career in this field, and we can develop ourselves. And we can develop the society, we can support to developing our countries. जहाँ तक जेड स्कीम की बात है तो हम देखेंगे कि भारत का जितने भी हमारे इंडिया में, हमारे देश में जो भी हमारे पुराने प्रोडक्ट्स हैं वो सब केमिकल लेस होते थे, नेचुरल होते थे, ऑर्गेनिक. अभी दोबारा से ऑर्गेनिक खेती के बारे में या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में या केमिकल लेस प्रोडक्ट्स के बारे में या जो एनवायरनमेंट के ऊपर या किसी दूसरे तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हार्म न करते हों, ऐसे प्रोडक्ट्स के या सर्विसेज के बारे में जेड स्कीम्स के माध्यम से या इस तरह के दूसरे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं. यूएनओ के जो एसडीजीज हैं, 17 एसडीजीज जो यूएनओ ने नोटिफाई किए हैं, जिनको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम से जानते हैं, तो उन सब में भी आप देखेंगे कि ऐसी कोई भी इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरियल प्रैक्टिस, ऐसी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो एनवायरनमेंट को हार्म करती हो या जो वहाँ की लोकल जो पॉपुलेशन है उसको हार्म करती हो, किसी तरह का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरह की कोई भी किसी तरह का नुकसान पहुँचाती हो, तो उन प्रैक्टिसेस को रोका जाता है, उन प्रैक्टिसेस को बहुत इंकरेज नहीं किया जाता है, उन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके उनसे बने हुए प्रोडक्ट्स को. बहुत सारी कंट्रीज तो ये साफ लिख देती हैं, एक अंडरटेकिंग लेती हैं कि ये जो प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हो हमारे देश में, इसमें चाइल्ड लेबर का यूज़ नहीं किया गया है, इसमें इन्वायरमेंट को हार्मफुल कोई भी इस तरह का कोई भी केमिकल इसमें यूज़ नहीं किए गए. तो एक सस्टेनेबल, एक
पूरा इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये जेड स्कीम उसी के ऊपर पूरी तरह से फोकस्ड है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हमारे यूएनओ के जो एसडीजीज हैं उनको भी फॉलो करती है। और जैसे ही यूएनओ के एसडीजीज को हम जब फॉलो करने लगते हैं हमारे एंटरप्राइज में, तो कहीं दुनिया के किसी भी देश में हम हमारा बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट जब यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनको इंपोर्ट करने में या उसको जो शुरू में बात कही थी वर्मा जी ने, तो उसको उस लॉट को या उस प्रोडक्ट को उनको रिजेक्ट करने का कोई कारण नहीं बनता है। तो कुछ बेसिक जो नीड्स होती हैं आपको अपने देश के लिए जो आप प्रोडक्शन करते हैं और जो सिचुएशन लेवल पे जब आप पहुंचते हैं तो आप किसी दूसरे देश में अपने प्रोडक्ट को टारगेट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, उसके एक्सपांशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब अप्रोच करते हैं तो बहुत सारी परमिशंस लगती हैं, बहुत सारे रिकॉग्निशंस लगते हैं और बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको हमको फॉलो करना होता है। अगर जेड सर्टिफिकेशन में आप गोल्ड सर्टिफिकेट जो इनका सबसे एडवांस सर्टिफिकेट है वो आप अगर एक्वायर कर लेते हैं, then you will be able to be accepted by many of the countries with your products or services what you are going to provide उसमें आगे बढ़ाने के लिए, लेने के लिए। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की अभी यहाँ पे फैकल्टी फेटर्निटी है, स्पेशली स्टूडेंट कम्युनिटी के भी कुछ लोग जरूर जुड़े हुए होंगे, तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े पैकेज के ऊपर जाके और प्लेसमेंट के लिए या जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए बड़ा काफ़ी चार्म रहता है। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि बाय बिकमिंग एंटरप्रेन्योर स्काई इज द लिमिट फॉर प्रोग्रेशन। कैरियर की बात करें आप या कुछ और की बात करें, मैं कुछ एग्जांपल भी कोट करना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल यूपीएससी अगर आपका टारगेट है, जो कि जनरली होता है अगर सरकारी नौकरी में कहीं कोई जाना चाहता है तो यूपीएससी इज द टॉप मोस्ट जो भी सबसे पहला एक चॉइस होता है। या कॉर्पोरेट सेक्टर में एमएनसीज में कहीं आप जाएंगे, आप क्योंकि सीआईएमपी में हम यहाँ बात कर रहे हैं तो अच्छे प्लेसमेंट की बात करेंगे तो करोड़ों रुपए के और लाखों रुपए के पैकेजेस पे हमारे जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स होते हैं वो जाते हैं। लेकिन ये चाहे जो करोड़ों रुपए के पैकेज पे जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स जाते हैं या जो यूपीएससी में सेलेक्ट होकर टॉप पोजीशन में जो मनचाहा कैडर और मनचाही जो पोस्टिंग जो पा जाते हैं, वो लोग भी कभी उससे बड़ी कोई चीज़ अगर उनको मिल जाए तो वो उसको जो पोजीशन उन्होंने एक्वायर की है बाय क्रैकिंग द कंपटीशन और बाय ग्रेजुएटिंग, ये जो डिग्री अर्न करने के बाद में, अचीव करने के बाद में, वो किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते हैं या वो उस लीजेसी को कि अब मैं 60 इयर्स का हो गया हूँ, रिटायर्ड कर रहा हूँ तो ये पोस्ट आगे से आप संभालिए, ऐसा नहीं करते हैं। कोई भी आईएएस अपने बच्चे को कि अभी आगे से आईएएस अब आप बने रहेंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर ही ऐसा होता है, ये यही एक ऐसा करियर है कि जिसको आप जहाँ भी छोड़िएगा वहाँ से आपकी अगली जनरेशन इसको आगे बढ़ा सकती है। इवन मैं स्टूडेंट्स कम्युनिटी को यहाँ ये बताना चाहूँगा कि अभी एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप को एज ए करियर ऑप्शन आप चुनते हैं, इसमें कुछ अच्छा कर पाते हैं, अच्छे से एस्टेब्लिश कर लेते हैं, इट माइट बी योर अल्टीमेट गोल टू बिकम लाइक आईएएस ऑफिसर या जो कुछ भी मैनेजमेंट ग्रेजुएट के बाद में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी बड़ी कंपनी में बड़ी पोजीशन को एक्वायर करना। और ये स्टार्टअप या ये जो माइक्रो एंटरप्राइज आप शुरू कर दोगे, ये जिस किसी भी फेज में जब होगी और आपका जो अल्टीमेट सपना पूरा हो जाएगा, तो उस समय में आपको ये बता रहा हूँ, आप भी इस बात से सहमत होंगे। नहीं सहमत होंगे तो जब ओपन मंच होगा तो कोई बोले कि मेरी बात से सहमत नहीं है, तो आप आईएएस बन जाना या आप वो जो एमएनसी में अपना पोस्टिंग ले लेना और जो स्टार्टअप या जो एंटरप्राइज आपने शुरू की होगी वो अपने मित्र को, अपने रिश्तेदार को, अपने भाई को, बहन को, पिताजी को, जिस किसी को भी पसंद करते हो उसको आप सौंप के वहां से जा सकते हो, भाई आगे इसको चलाइए, इतना मैंने चला के इसको एस्टेब्लिश करके दे दिया, प्रॉफिट मेकिंग इसको बना के दे दिया। लेकिन कोई ये क्वेश्चन में जरूर बाद में जब ओपन मंच होगा तो पूछना होगा, कोई ऐसा हो कि भाई मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं मैनेजमेंट ग्रेजुएट बन जाऊं, मैं फला नौकरी पा लूं, मैं फला पोजीशन पा लूं नौकरी के क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, और आप चाहें कि इससे बड़ा मुझे कुछ मिल गया है। फॉर एग्जांपल किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, एक मीडियोकर मल्टीनेशनल कंपनी में आपको कोई अच्छी मिल जाती है कोई पोजीशन, और आपका गूगल में, आपका अभी ट्विटर ये बड़ा छाया हुआ है, एलन मस्क ने जब से उसको लिया है, या आप बात करें तो दूसरे किसी में, किसी भी एरिया में, आपको उससे बड़ी कंपनी में या टॉप 10, टॉप 5 में से किसी कंपनी में अगर आपको कोई बड़ी पोजीशन आपको ऑफर मिल जाता है, तो क्या आप वो जो छोटा ऑफर है अपना, जो अभी का प्रेजेंट ऑफर है, वो किसी को गिफ्ट कर सकते हो या मैनेजमेंट को ये रिकमेंड कर सकते हो कि ठीक है साहब, मुझे तो इससे बड़ा अच्छी पोजीशन मिल गई है, बड़ा पैकेज मिल गया है, अब मेरी जगह ये काम करेंगे? वो आपसे पूछेंगे भी नहीं। इवन एक सही कैंडिडेट का भी अगर आप रिकमेंडेशन करेंगे, देन दे विल फाइंड आउट बिहाइंड दैट लाइक is there any vested interest of your recommendation, is your recommendation is good
would that be profitable or beneficial in long term for the company? So they will not going to take even your suggestion, your recommendation, but as an entrepreneur अगर आप कहीं भी किसी भी मंच पर जाएंगे तो न केवल अप्रिशिएट किए जाएंगे बल्कि आप अपनी लीडरशिप को पीछे छोड़ सकते हैं। अपने हिसाब से आप वीकडेज में कब ऑफ रखना है, आपके ऑफिस आवर्स क्या रखने हैं, आप कितने एम्प्लॉइज रखेंगे, लोग आपके हिसाब से काम करेंगे, आप लोगों के हिसाब से काम नहीं करेंगे। आप देश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से कंट्रीब्यूट करेंगे। आप इस चीज के लिए गर्व कर सकते हैं कि मेरे टैक्स के पैसे से अस्पताल बना है, या मेरे टैक्स के पैसे से अभी पृथ्वी 5 जो मिसाइल का अभी किया था ना कुछ लास्ट 2-3 दिन पहले ही, आप ये सोच सकते हैं, मैं भी सोच सकता हूँ जो भी टैक्स पे करता है कि मेरे पैसे से ये नेशनल डिफेंस की जो एडवांस इक्विपमेंट्स है उनकी रिसर्च होती है, या उनको बनाया जाता है या खरीदा जाता है, या जो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करना है उनकी सैलरी मेरे पैसे से जाती है। आप ऐसा गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एज ए करियर ऑप्शन की जो मैं बात कर रहा हूँ, या स्टार्टअप की जो मैं बात कर रहा हूँ। आत्मनिर्भर भारत बनाने में या एंटरप्रेन्योरशिप एज ए करियर ऑप्शन चुनने में सबसे पहला फायदा इसके चुनने वाले को है, एक स्टूडेंट को है, एक एस्पिरेंट को है। इसका फायदा गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट इतनी सारी स्कीम्स चलाती है, उसको तो बहुत बाद में होता है कि आप जब सक्सेस होते हैं उसको स्केल अप करते हैं, आगे ले जाते हैं और अच्छे से एस्टेब्लिश करने के बाद में जब कभी टैक्स के दायरे में आते हैं तो आप गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन तब भी गवर्नमेंट किसी भी कितना भी बड़े लेवल के एंटरप्राइज को जब आप एस्टेब्लिश करते हैं तो कंटिन्यूसली किसी भी स्केल के एंटरप्रेन्योरशिप को या एंटरप्राइज को सपोर्ट करने के लिए हमेशा कंटिन्यूसली गवर्नमेंट जितना टैक्स आपसे लेती है उससे ज्यादा गवर्नमेंट हमेशा स्कीम, सब्सिडीज और प्रमोशन आपका करने के लिए तैयार रहती है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का ही एक पार्ट किया, इसीलिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जिसको मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज डायरेक्टर, और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का ही एक पार्ट है डीएफओ ऑफिस, जो डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफिस, जो आपके इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा है या जेड स्कीम को जो प्रमोट करने के लिए इस प्रोग्राम को किया है। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, ये सारे प्रोग्राम सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं कि हमारी जो भी जानकारी है उस जानकारी में अगर किसी तरह की कोई कमी है तो उस कमी को हमको पूरा करना है। इस कार्यक्रम के बाद में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो आजकल देखिए जमाना आईटी का है, आप इनकी वेबसाइट पे जाइए, सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे, वीडियोस आपको मिल जाएंगे, स्कीम आपको मिल जाएगी, प्रोविजंस आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन अप्लाई करने का आपको वहाँ सारा पूरा मौका मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा। इट इज लाइक ये बहुत पीछे की बात है कि आप किसी चीज के लिए हमको ऑफिस भटकना पड़े, जाना पड़े, लोगों से हमको रिक्वेस्ट करना पड़े कि हमें इसके बारे में जानकारी दीजिए। इवन इसके बाद में भी अगर आपको लगे तो यू आर फॉर्चुनेट इनफ, लाइक व्हेनेवर यू वांट, आप हमारे ऑफिस आइए। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की जितनी भी स्कीम्स हैं उनके बारे में ऑनलाइन है, हालांकि आप आना चाहें आइए, हमें अपने इंस्टीट्यूट्स में बुला लीजिए, आप अपने फैकल्टीज को बताइए। स्टूडेंट से स्पेशली मैं कहना चाहूँगा, फैकल्टी से कहना चाहूँगा, अपने स्टूडेंट से पूछिए, कभी उनको लगता है दोबारा किसी तरह का कोई ऐसा काउंसलिंग सेशन है, कुछ उनके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्वेरीज नहीं आती हैं जब आप उस पर सोचते हैं, पढ़ते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, वरना तो कभी कुछ नॉलेज नहीं है तो कंफ्यूजन भी नहीं है। मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन। सो जितना ज्यादा नॉलेज आप एक्वायर करेंगे, गेन करेंगे, उतना कंफ्यूजन होगा। जरूरत है जिसका भी उसको आप बुला सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा जिज्ञासु बन के रहिए। देखिए नौकरी के फील्ड में मैं फिर बाद में यही कह के अपनी बात को मैं यहाँ पे, चूंकि इनॉग्रल एड्रेस है इसमें लंबी बात मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं यहीं पे इसको समेटूंगा कि करियर और इस सब चीज़ों के बाद में सबसे पहले एक नागरिक के नाते जिस देश में हम जन्मे हैं, जहाँ की हवा पानी और सब चीज़ लेके हम जीते हैं, उसके लिए हमारा फर्ज ये भी है कि वो देश हमारे ऊपर गर्व कर सके, हम उस देश के ऊपर गर्व कर सकें। तो जो एंटरप्रेन्योर जो क्वालिटीज़ होती हैं वो लोग हमेशा न केवल अपने को, अपने आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ दे के जाते हैं, बल्कि अपने देश में भी, जिस देश में वो रहते हैं उसको भी दे के जाते हैं। अगर आप जेड स्कीम का फायदा उठा के इंटरनेशनल क्वालिटी के या ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो आप इसको एक्सपोर्ट करेंगी आपकी कंपनी या आपका जो भी एंटरप्राइज होगा, जो भी वेंचर होगा। तो जब एक्सपोर्टर आप बनते हैं तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, किसी भी देश की गवर्नमेंट का सबसे लाडला बेटा बोलिए, सबसे लाडला दामाद बोलिए, एक्सपोर्टर ही होता है। क्योंकि एक्सपोर्टर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है तो वहां से फॉरेक्स आता है, और जितना ज्यादा जो फॉरेक्स लाता है कंट्री के अंदर वो सबसे ज्यादा लाडला, सबसे ज्यादा सम्मान का हकदार होता है। न केवल उसको सम्मान मिलता है, बाकी सुख सुविधाएं तो धन के साथ में अपने आप में आती ही हैं।
तो ये सारी चीज़ों के साथ में मैं जेड स्कीम के इस वर्कशॉप के प्रोग्राम में जेड स्कीम के बारे में पूरी चीज़ें ना बता के, क्योंकि ये सेशन बाद में नवीन जी लेंगे, आपका पूरा कंप्लीट उनका प्रेजेंटेशन होगा, कुछ लिटरेचर भी वो आपके साथ में शेयर किए हैं, प्रेजेंटेशन भी आई होप वो आपके साथ में शेयर करेंगे, ऑनलाइन बहुत कुछ इसके बारे में है। लेकिन जेड स्कीम जो है वो एक अगला स्टेप है। उससे पहले तो ये स्टेप है कि हम एक ये डिसीजन लें कि हमको एंटरप्रेन्योर बनना है या एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में, हमको स्टार्टअप की फील्ड में हमको जाना है। तो आप जो भी अपना आइडिएशन कर रहे हैं स्टार्टअप के लिए, स्पेशली जो इंक्यूबेटर्स हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसमें जेड स्कीम को अभी से अगर समझ लेंगे तो आप अपनी स्कीम को स्केल अप करने में, उसको आगे फ्लोरिश करने में, इन सब चीज़ों के प्रोविजंस को भी ध्यान में रखेंगे। और न केवल प्रोविजंस को ध्यान में रखेंगे, हमेशा हमको टारगेट बनाना चाहिए दुनिया का बेस करने के लिए, दुनिया का बेस बनाने के लिए। तो अगर दुनिया का बेस आपको बनाना है तो ये रास्ता जेड स्कीम के उससे ही गुजर के जाता है। अगर जेड स्कीम को नहीं समझेंगे और जेड स्कीम के जो भी प्रोविजंस हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे तो ये रास्ता आपका हमारे ही लोकल एरिया में या आपका जहाँ कहीं भी जो भी आपका एरिया है वहीं जाके खत्म हो जाता है। तो अगर आप बड़ा सोचते हैं तो बड़ा सोचने के साथ साथ जेड स्कीम के जो भी प्रोविजंस हैं उनको अच्छे से समझिए, न केवल समझिए बल्कि उनको अपने स्टार्टअप्स में, अपने आइडियाज़ में, या आपने जो भी एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज़ या जो भी आपके विचार हैं, जो आपके इनिशियल जो सोचा है उसके बारे में इसके साथ भी समानांतर तरीके से, बराबर तरीके से सोचिए। मैं समझता हूँ मैंने शायद थोड़ा सा कंपैरेटिवली शायद ज़्यादा समय ले लिया हो, तो कभी और किसी और मंच पे, किसी और जगह पे हमें अगर मौका मिलेगा तो हम जरूर आप लोगों से इस कम्युनिटी से बात करना चाहेंगे। जहाँ तक खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का सवाल है, जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो फ्लैगशिप स्कीम होती है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसमें 50 लाख रुपीस तक के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और 20 लाख रुपीस तक के सर्विस यूनिट के लिए मैक्सिमम 35% तक सब्सिडी उसमें प्रोविजन होता है। यानी 50 लाख रुपए की यूनिट अगर आप लगाते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो 17.5 लाख रुपए उसमें सब्सिडी का प्रोविजन होता है। लेकिन बियॉन्ड दैट लिमिट आल्सो लाइक 2 करोड़ रुपए तक की भी यूनिट अगर आप उसमें लगाना चाहते हैं और प्रोजेक्ट अगर बैंकेबल है या फिजिबल है, बैंक उसमें तैयार है आपका सहयोग करने के लिए, तो उनको भी हम वेलकम करते हैं। और इसमें लाखों एंटरप्रेन्योर हर साल इसका फ़ायदा उठाते हैं। आप अपने मोबाइल को अगर चलाते हैं, जो कि सब चलाते ही हैं, एंड्रॉयड या आईफोन iOS यूज करते हैं, दोनों पे आप जाके गूगल पे जाके अगर आप PMAGP ऑनलाइन ढूंढेंगे तो ऑनलाइन घर से ही अपने हाथ से ही आप कुछ क्लिक से उसमें आवेदन कर सकते हैं। पूरा ट्रांसपेरेंट है, पूरा ऑनलाइन है, कहीं किसी ऑफिस को आपको विजिट नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जब ये एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे तो हमारे ऑल ओवर इंडिया 7000 डिपार्टमेंटल नॉन डिपार्टमेंटल सेल्स आउटलेट्स हैं, उनके जरिए आपके प्रोडक्ट्स को, आपकी सर्विसेज को हम आपके प्रमोशन में आपकी मदद करते हैं। हमारा अपना ई-कॉमर्स पोर्टल डेवलपिंग स्टेज में है, ऑलमोस्ट बेटा वर्जन उसका लॉन्च भी हो गया है, उसके जरिए हम आपको सपोर्ट करते हैं। मिनिस्ट्री की बहुत सारी ऐसी स्कीम है, हमारी KVIC की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें स्टेट लेवल की, नेशनल लेवल की या इंटरनेशनल लेवल की जो एग्जीबिशंस हैं, उन एग्जीबिशंस में जाने के लिए उनके स्टॉल का व्यवस्था या उनका खर्चा या आपका जो एयर फेयर है या ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हैं, जो भी नॉर्म्स के हिसाब से, एलिजिबिलिटी हिसाब से वो आपको दिए जाते हैं। एज ए MSME यूनिट अगर आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको टेंडर में भी बहुत सारे फायदे मिलते हैं। लाइक अगर L1 टेंडर आपका किसी का निकला है, उसके 15% के अंदर, 20% के अंदर अगर आपका कोई प्राइस कोट किया है आपने, तो जो भी सप्लाई किया जाना है मटेरियल, उसको L1 रेट पे अगर आप तैयार हैं तो वो भी आपको लगभग 20% 25% उसका आपको मिल जाएगा। महिलाओं के लिए गवर्नमेंट सप्लाई में एक अलग से उसमें रिजर्वेशन है। अगर महिला एंटरप्रेन्योर हमारे हैं तो SC ST के जो एंटरप्रेन्योर हैं, नेशनल SC ST हब स्कीम एक चलती है, उसके लिए अलग से 4% के लगभग उसमें रिजर्वेशन है जो भी गवर्नमेंट की खरीदी है। KVIC के जितने उत्पाद होते हैं किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी टोटल जो वार्षिक खरीद होती है उसका 20% बिना किसी टेंडर के सीधे वो उसमें सप्लाई ले सकते हैं GFR के नाम के हिसाब से। तो ये चीज़ें जो एंटरप्रेन्योरियल माइंड के लोग हैं, मेरी बातें मैंने एक दो लाइन में बताई, इन बातों को समझ जाएंगे कि आप इतना उत्पादन ही नहीं कर सकते हैं कि गवर्नमेंट के इन प्रोविजंस का फायदा उठा के बिना किसी टेंडर के गवर्नमेंट सप्लाई ही कर लें। उसी के लिए बहुत उत्पादन आपको बढ़ाना पड़ेगा, उसी में आप करोड़ों रुपए में खेलने लगेंगे, सही बोले तो पहले इतना कर लीजिए। इसी के लिए गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स हैं, और गवर्नमेंट की और भी जो बहुत सारी स्कीम्स हैं उनके बारे में धीरे धीरे आप समझेंगे, उसका फायदा उठाएंगे। मैं यहाँ पे अपनी बात को
समाप्त करते हुए CIMP के मैनेजमेंट का, फैकल्टीज का, एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करना चाहूँगा। और धन्यवाद को आभार करना चाहूँगा प्रदीप साहब का कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे इस मंच पे आप लोगों से इंटरेक्ट करने का, बताने का। बाकी भविष्य में जरूर एक शुरुआत हुई है तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Now, may I request our honorable chief guest. Thank you, ma'am. Dr. Rana Singh, Director CIMP, President of this program. Dr. Haneem Mewati, Director KVIC Patna. Sri Kumud Kumar, CIMP. Dr. Rana Singh, Director CIMP. And all agent dignitaries. It gives me immense pleasure to be here on this auspicious occasion because it is become the ornaments of our country. As our predecessor has told very correctly that, without amplification, the quality of the product, you cannot import your products, you cannot export your products. And I can tell with the proud that our MSME is contributing 40% in export in India. So you can understand how much chunk we are providing from MSMEs. That's why Government of India, Ministry of MSC has made a plan to give more emphasis on MSMEs to export their products. Why? Because our contribution is more than 40% in exports. In that context, what happened? JED scheme has been formulated and accepted by Government of India and inaugurated by Honorable Prime Minister of India. And it has been given some incentive by our ministry. And lot of incentive has been given by other states of our country in this scheme. What incentive has been given by our ministry, what other states is giving incentive to for getting JED to MSMEs, that will be discussed later on in our technical sessions. Our officers will let you know the things. But I can give you the overall view of the JED, why it is so much pertinent nowadays. As you know, some of our predecessor has told Six Sigma, Kaizen, Ukayuke. Earlier it was running very smoothly to keep our product in pace with the changing scenario in context of export. But then JED has taken place. And zero effect, zero defect. Why it has been adopted by Government of India? Because it is quality-wise is worthy, quality-wise is accepted to global level, and eco-wise friendly, eco-friendly. It could not harm to our atmosphere when you produce this product. So considering this, maximum importance of the product should be qualitative and without harming our international environment. So if we consist these two qualities in the product, that will get automatically JED certification through our system, that is called JED certification systems. So when you make this product with this intention, you can contribute a lot to our society, to our country, to international standards. As you know that, Government of India, even Railway, Ministry of Railway has given some concession for JED certification MSMEs. Like Railway, he has given, partial concession. He has given partial concession if your product is
JET certified. If you are JET certified, you are supposed to get a subsidy for the international Mela. If you want to go in international Mela and your product is JET certified, you will get some sort of subsidy from Ministry of MSME. So lot of components has been given for MSME certification under JET schemes. So why we have come together to you? Because all people from, I think from fraternity of technical sort of educational line of thing. So let your prospective entrepreneurs think about it. They should not think always to get the job, as our predecessor Mr. Mewati has told. Let you also inspire them to be the master of MSMEs. He will not only create the job to our nations, but he will make our nations more prosperous. So first you let them understand what is MSME. My focus is to make you aware about MSME. So let your candidates aware about MSME. Let them understand how he can get the loan from banks. Let them understand what product should be useful for them to manufacture. Let them understand how to make them more sellable in national and international level. How that product can be innovative to reach our commoners, common peoples. These are the parameters by which you can disseminate your propagation to existing your students. So some students should be, if you are in a position to deliver your mindset to your students, I think by that time our victory will come up. Our victory starts when you make them aware of MSMEs. So as you know that CIMP is our also HI host institutions, where we are giving only ideas. You are giving the ideas and we are just inculcate them through your lab by giving some financial inputs and something like this. So why it is like this? Why Government of India is incurring a lot of expenditure for inculcating the innovations, inculcating for new ideas, for national awards, for international awards? Why? Because MSME is now become the backbone of our nation. We cannot think forward without considering MSME as a significant tool for the development of our nation. So this is one of the very, very conclusive sort of ideas, or we can trigger our MSMEs to boost our nations. So I will not take too much time because technical sessions is going to start. But I will again appeal you on this dais that let your candidates be MSME minded. You make your candidate MSME minded. He can think about establishment of industry. Nowadays, MSME's definition is very, very vital, very all sort of trading, all sort of servicing and all sort of manufacturing coming under the umbrella of MSME. But this particularly JET scheme at present is coming only for product manufacturing, not for servicing, till now. So in due course of time, it may also cover the services also, but till now it is only for product of MSMEs only. So I extend my thanks to CIMP also. He has given a very good hospitality to us and given chance to make your fraternity more knowledgeable about MSME so that you can disseminate your ideas and your views to MSMEs. And I hope this scheme or this certification scheme or this program will get the boost for making our MSMEs more authentic, more pointed and more dynamic so that they can also get the JET certifications.
Thank you, all the best. Thank you, sir. Pranav Singh Ji to deliver the presidential address. Honorable Shri Pradeep Kumar Jhaji, Manager, SIDBI Patna. Dr. Hanif Mewati Ji, Director, KGIC Patna. Shri Pradeep Kumar Ji, IEDS, Director, MSME, DFO Patna. Shri Naveen Kumar Ji, IEDS, Assistant Director, Grade 1 MSME, DFO Patna. Shri S.K. Verma Ji, Assistant Director, MSME, DFO Patna. My esteemed colleague, Shri Kumod Kumar Ji, CAO, CIMP. Professor Dr. Rajiv Verma Ji. Esteemed entrepreneurs, future entrepreneurs, delegates, participants, research scholars, academicians, and all members attending the session online, offline. A very warm good afternoon to one and all. At the outset, I would like to extend my heartfelt thanks to MSME for considering us, not just making us the host institution, but also keeping us in mind for hosting this program on awareness on MSME Sustainable Z Certification Scheme. It's indeed a marvelous initiative, and let me place on record my deep sense of gratitude to the Ministry of MSME for focusing on taking the quality and innovation dimension down to the grassroots level to one and all, especially in the MSME category. It would not be out of place to mention that India has leapfrogged from rank 86 to 46 to 40 in the last 3 years on the Global Innovation Index. And thanks to the various missions of the respective ministries and the initiatives of MSME, which is focusing on quality and innovation dimensions. तो मैं MSME के सभी जो हितधारक हैं और यहाँ के जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं, मैं उन सबका हृदय के अंतर्मन से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और मैं इस मंच के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो क्वालिटी की मिशन है वो जापान से शुरू हुई थी। जापान is considered to be one of the most powerful driving force in the area of quality. And I was blessed to be part of Delhi Productivity Council in the initial years of my career, which was again a part of National Productivity Council. And I got opportunity twice to go to Tokyo to represent NPC through DPC, but somehow I could not make it for some very personal reasons. The major focus of Z, we all have discussed, is to focus on getting the certification. Well, this is level 2. The first mission is to drive the mission of quality. And one of my dear friends, who's also the Secretary General of Quality Council of India, thanks to this program, during the program itself, I requested Kumuji just sign an MOU because he was erstwhile Vice Chancellor of Sharda University and now the Secretary General. I requested him to sign an MOU and call him to the state of Bihar. So the mission of quality accomplishment is an ongoing journey. While we say quality is journey, not a destination, we have to consistently drive on the mission of ensuring new levels of quality. Please forgive me for my sore throat. So let us understand what are the key driving forces of quality
And before this, let us understand the definition of productivity. Internationally, and even in our country, productivity is the ratio of output to input with desired specifications of time and quality. उत्पादकता जो है वह रेशियो है जो कि आउटपुट और इनपुट की रेशियो को डिफाइन करता है, लेकिन उसके साथ साथ दो कंडीशंस हैं, टाइम और क्वालिटी. सो विद डिजायर्ड स्पेसिफिकेशंस ऑफ टाइम एंड क्वालिटी. तो अगर हम सीमित समय में बेहतरीन क्वालिटी को इंश्योर करके कम से कम इनपुट लगा के अधिक से अधिक अगर हम उत्पादन कर सकें, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, एंड दैट मेक्स आवर प्रोडक्ट ग्लोबली एक्सेप्टेबल, एंड दैट मैक्सिमाइजेस एंड एनहांसेस आवर एक्सपोर्ट पोटेंशियल. और हमारे कलीग कह रहे थे कि सबसे लाडला दामाद वो होता है जो फॉरेक्स लेकर आता है. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई वाज लिसनिंग टू ऑल द brilliant luminaries which we had here. It was very insightful to listen all the data, statistics which was discussed. So let us understand the mission to focus on quality is very very important. And so I started with productivity, the ratio of output to input with desired specifications of time and quality. So in case of manufacturing, it is one of the most challenging dimension to minimize the time unless we are mechanizing. Now, if we are involving too much of technology, that has its own share of impact on employability. India has a lot of means manpower. So if we go for too much of mechanization, it impacts the overall productivity. However, the best part is to focus on quality with least amount of mechanization if we can maximize the quality. And I'll take the example of Dabbawala. The Dabbawala from Mumbai, though even services is not included currently in Z certification, but even in services sector, India's Dabbawala was considered by Harvard, Wharton, Kellogg, some of the top-notch business schools, for ensuring 6 sigma efficiency, which allows only 1 error out of million. So that's the kind of efficiency we have accomplished and we have shown to the world. So here is the time for us to sensitize all the entrepreneurs, the importance of quality, how we can achieve it, and how we can make application for the Z certification. वक्त आ गया है कि हम उद्यमियों को इस बात से अवगत कराएं, प्रक्रियाओं से उनको अवगत कराएं, ताकि वो अधिक से अधिक संख्या में इसके फायदों को जान पाएं. हमारे यहाँ अरबों की तादाद में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स खरीद करते हैं, परचेज. और वो एक इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, अगर वो समझ लें कि अगर हम Z सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो हमारी डायरेक्ट एंट्री हो जाती है CPSU में, और उसका एक सिंपल आउटकम है. मैं तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक पॉइंट में क्लोज कर दूंगा. अरबों की खरीद होती है डिफेंस के द्वारा और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के द्वारा. तो अगर वो Z सर्टिफिकेशन ले लेते हैं, जिसके लिए सरकार काफी हद तक उनकी आर्थिक सहयोग भी कर रही है, उनकी गाइडेंस कर रही है, उनकी कंसल्टेंसी कर रही है, उनकी गैप एनालिसिस करके देने के लिए तैयार है, उनके असिस्टेंस के लिए, उनकी हैंड होल्डिंग के लिए तैयार है, कंसल्टेंसी दे रही है उनके लिए QCI, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल. तो भारत के ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, तो भारत के जो ख्याति प्राप्त जो लब्ध प्रतिष्ठित संस्थान है, उनसे जो है उन्हें परामर्श दिलवा रही हैं, उन्हें वित्तीय सहायता दे रही हैं. और आजादी के 75 वर्षों के बाद इतनी सकारात्मक रुख है कि सरकार के जितने नुमाइंदे हैं वो जन जन तक जाकर बता रहे हैं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़िए. अन्यथा पहले लोगों को ऑफिस के धक्के खाने पड़ते थे, लोगों के दर्शन नहीं हो पाते थे. तो ये एक क्रांतिकारी बदलाव है, और इस बदलाव को सकारात्मक तरीके से लेकर हम लोग जन जन तक पहुंचाएं, उद्यमी को तक पहुंचाएं, ताकि भारत के जितने भी उत्पाद हैं, MSME के उत्पाद हैं, वो विश्व के कोने कोने तक पहुंच सके. इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं. आज के इस कार्यक्रम Z सर्टिफिकेशन के कार्यक्रम के लिए मैं सबसे पहले MSME को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमारे संस्थान को इस कार्यक्रम के लिए चुना. आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
श्री प्रदीप कुमार जी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि प्रदीप कुमार जी हमेशा हमारे यहाँ इससे पहले भी कई कार्यक्रम में आ चुके हैं, और जब भी हम लोगों को जरूरत पड़ती है या कोई भी मार्गदर्शन होता है तो प्रदीप कुमार जी का हमेशा सहयोग रहता है। आज के इस कार्यक्रम में जो KVIC के निदेशक हनीफ मेवाती जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि वो संभवतः पहली बार हमारे यहाँ आए हैं, और ये जान के हमें और खुशी हो रही है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप के ही प्रोफेसर भी रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आपका आगे भी हमारे यहाँ आगमन होता रहे, उद्बोधन भी। हाँ, उद्बोधन भी होता रहे, और आपके एंटरप्रेन्योरशिप वाले ज्ञान का जो है हमारे बच्चे भी उसका लाभ उठा पाए। उद्बोधन ही नहीं, ये फाइनेंसर भी रहेंगे आपके, धन समर्पण भी, धन समर्पण भी करेंगे ये। मैंने की बात को सप्लीमेंट ज्ञान की तो सीमा होगी, धन की कोई सीमा ही नहीं है कि उद्यमियों के लिए। हालांकि हनीफ मेवाती जी से मेरी एक बार पहले भी मुलाकात हुई थी, लेकिन उस समय ये जो इनका जो इस क्षेत्र में ये प्रोफेसर रहे हैं, ये स्वरूप इसका नहीं मुझे- मालूम था। हाँ, ये स्वरूप मुझे पता नहीं था। तो बहुत बहुत धन्यवाद हनीफ मेवाती जी का। साथ ही मैं हमारे साथ क्लोजली काम करने वाले हमारे मित्र SK वर्मा जी का मैं धन्यवाद देता हूं। हम लोग साथ काफ़ी काम करते रहे हैं, और जब भी कभी इन्होंने पहली बार आके कहा कि इस तरह का कार्यक्रम करना चाहते हैं, मैं आगे भी सर को कहता हूं, प्रदीप जी को, कि MSME से रिलेटेड कोई भी, अगर एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम हो तो CIMP आपके साथ जो है वो खड़ा है। साथ ही मैं नवीन जी कुमार जी को धन्यवाद ज्ञापन देता हूं कि वो इसमें इस कार्यक्रम में जो है अपने टेक्निकल सेशन के माध्यम से हमारे जितने भी इंक्विटीज हैं उनको लाभ देंगे। साथ ही हमारे निदेशक डॉक्टर राणा सिंह जी का मैं दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के हमारे निदेशक महोदय बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं, और इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन ये प्रोग्राम के नाते ये आए हैं, और फिर ये चले जाएंगे अभी रेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। और यहाँ जितने भी लोग फिजिकल माध्यम से जितने भी एक्टिविटीज जुड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, और जो ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सबका मैं धन्यवाद देता हूँ, और आज के इस कार्यक्रम का वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएँ, इसके लिए मैं उनको शुभकामना देता हूँ। लास्टली मैं अपने टीम को और हमारी जो सहयोगी है प्रज्ञा, अंजलि, खुशबू, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Now, may I request Professor Dr. Rana Singh ji to present memento to our honorable chief guest, Shri Pradeep Kumar. हेलो। हाँ, हेलो। जी जी जी। थैंक यू। जी जी। Now, may I request Professor Dr. Rana Singh ji to present memento to our honorable guest, Shri Hanief Mewati ji. Dr. Hanif Mewati. Sorry. It takes 4 years to get that. I think 5 years. I took 7. So I understand the challenges. Now, may I request Professor Dr. Rana Singh ji to present memento to Shri SK Verma ji. तो साथ में हो जाएंगे। Now, may I request Professor Dr. Rana Singh ji to present memento to our honorable guest, Shri Naveen Kumar ji. We hope you all had an informative session on MSME Z certification scheme.
entrepreneurial ventures, may I now request everyone to please stand up for the national anthem. Yes, Sir. बैठिएगा ना सर जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you. Jai Hind. जय हिंद। कंटिन्यू करो जी। मुलाकात तो एकदम होती रहेगी और फिर आप लोग 10,000 तो 30,000 जो उसका 80% सब्सिडी निकाल दी तो मात्र 6,000 बचे। आई मीन टू से सिल्वर भी एक तरह से बहुत कॉस्टली नहीं है। इसमें ये बात है कि आपको जो सब्सिडी का पैसा काट के ही पेमेंट कर और इसका पोर्टल है, मैं दिखा रहा हूं। गोल्ड में आपका साइट असेसमेंट होगा, गोल्ड इज समहाउ टफ, उसमें साइट असेसमेंट समझ में आ रही है बातें मैं जो बोल रहा हूं। अब जैसे आप देखिए टोटल 20 पैरामीटर हैं, जिसमें ब्रॉन्ज के लिए सिर्फ 5 पैरामीटर, सिल्वर के लिए 14 और गोल्ड के लिए 20। ध्यान से देखिए। अब ब्रॉन्ज का क्या है? लीडरशिप, स्वच्छ वर्कप्लेस, वर्कप्लेस का फोटो अपलोड कर, सेफ्टी, सेफ्टी की जब हम बात करते हैं हेलमेट होना चाहिए, कुछ उस तरह से टाइमली डिलीवरी। आज एमएसएमई को क्या, अभी हमारा भी एक्सपीरियंस रहा है कि कोई सामान का ऑर्डर किए, अभी जेब पे ही सामान का ऑर्डर किए, सामान टाइम पे नहीं आया। अब बोल रहा है सप्लायर कि सर आपका स्पेसिफिकेशन मैं नहीं समझ पाया, आपका स्पेसिफिकेशन मैं नहीं समझ पाया, इसलिए बनाने में टाइम लगा। अब जेब तो लेट डिलीवरी करने पर फिर कस्टमर उसको बना हुआ है, आपको टाइम से डिलीवरी देना। एमएसएमई की बहुत बड़ी समस्या है कि समय पर आप बोलते हैं कि हम बोलते हैं, भारत सरकार कहती है कि एमएसएमई का पेमेंट टाइम से होना चाहिए, डिलेड पेमेंट एक्ट बना, आपको टाइम से डिलीवरी मतलब सामान भी तो टाइम से देना है। उसके बाद क्वालिटी, ये सारी चीजें हैं। उसी तरह से जब आप सिल्वर पे जाते हैं तो कुछ और पैरामीटर 14 पैरामीटर हो जाते हैं, गोल्ड पे जाते हैं तो 20 पैरामीटर हो जाते हैं। बिहार में अभी 17 लोगों को ब्रॉन्ज मिल गया और बहुत सारे लोग सिल्वर के लिए अप्लाई किए हैं, जो कि अभी असेसमेंट चल रहा है। पैरामीटर पे बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। स्वच्छ वर्कप्लेस आप जान रहे हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी क्या होती है कि आपके वर्कप्लेस पे किसी तरह का हजार्ड ना हो, फायर सेफ्टी है कि नहीं, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगे होने चाहिए। ये सारे पैरामीटर हैं, इनको आप स्टडी में मटेरियल्स मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, सारी कॉमन चीजें हैं, इस पे असेसमेंट होता है। वेस्ट मैनेजमेंट, और जैसे क्या होता है किसी फैक्ट्री में बहुत सारा, मैं फैक्ट्री में गया तो वहां पे बहुत सारा वेस्टेज जमा है, आपको वेस्टेज नहीं रखना। जब हम लोग फाइबर्स की बात करते हैं तो उसमें वेस्टेज को ही डिस्पोजल करना जरूरी होती है।
तो ये सर ISO सर्टिफिकेशन से अलग क्या है? हाँ, इसका आपका प्रश्न है ISO सर्टिफिकेशन क्या है? ISO सर्टिफिकेशन एक सिस्टम सर्टिफिकेशन है और जेड के थ्रू मंत्रालय चाह रही है कि ISO अगर आपके पास है तो आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिल सकते हैं जो जेड दे रही है। हम ये बोल रहे हैं कि आप बैंक में लोन लीजिएगा तो आपको प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगा अगर आप जेड सर्टिफाइड। जी, बात समझिए, हर नई चीज कस्टमर पसंद करता है, कस्टमर पुराना चीज पसंद नहीं करता। ISO पुराना हो गया। हाँ, वो एक आज हम बात ये कर रहे हैं कि जो भी बनाओ उसमें कोई डिफेक्ट ना हो और जो भी बनाओ उसका एनवायरनमेंट में कोई इफेक्ट ना हो। ISO का तो वो थीम नहीं है। और ISO ये कहाँ बोलती है कि ISO लेने पे हमको बैंक में प्रोसेसिंग फी नहीं लगेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं ना बोलती है। तो अभी आपको हम दिखलाएंगे ISO ये कहाँ बोलती है कि हम प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन लेंगे तो उसका चार्जेस रिइंबर्स होगा, हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करेंगे तो गवर्नमेंट फंड देगी। एक इकाई में मैं गया तो वहां उन्होंने दिखाया कि देखिए नवीन जी, मैं ये सोलर पैनल लगाया हूँ, अब हमारा सौर ऊर्जा से भी एनर्जी हम इकाई में जनरेट कर रहे हैं। उसी तरह से अगर कुछ इन्वायरमेंट फ्रेंडली हम इक्विपमेंट लगाते हैं तो उसके लिए आपको रिइंबर्स सीधे QCI से होगा, उसमें 3 लाख का प्रोविजन है। अंतर समझ में आया? जेड जो है होलिस्टिक अप्रोच है। जेड और ISO में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। आइसोलेशन में ISO सर्टिफिकेट है ना? है। दोनों अलग चीजें हैं। अब देखिए बेनिफिट्स पे आप आइए। पहला बात है कि ISO एक सिस्टम सर्टिफिकेशन है। जेड ये इंश्योर करेगी कि आपका प्रोडक्ट का कॉस्टिंग कम होगा, है ना, प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ेगा और आपकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। भले आपको कोई बेनिफिट मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन ये 3 चीज आपको खुद मिल जाएगा। ISO तो ऐसा नहीं करता। ऐसा नहीं करता। ISO is a common thing. You cannot compare ISO with JED. अब देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ कि सर्टिफिकेशन से क्या सब्सिडी है, इसको ध्यान से देखिए। मैंने पहले बताया कि ब्रॉन्ज का चार्जेस फ्री है। फ्री हम क्यों बता रहे हैं कि 10,000 जो चार्ज लिखा हुआ है, जैसे ही आप प्लेस लेते हैं आपका 10,000 आप उसको इन्वेस्ट कीजिएगा, 0 चार्ज पे आप पहुंच जाए। माइक्रो को 80%, स्मॉल को 60%, मीडियम को 50%। ये सब्सिडी दे रही है सरकार। और ऐसा नहीं है कि पहले आपको पैसा देना है फिर रिवर्स होगा। अगर हम सिल्वर लेने जा रहे हैं 40,000 आपका कॉस्ट है तो उसमें से पहले आप 10,000 रुपया माइनस कीजिए प्लेस का। अभी आपको दिखलाएंगे पोर्टल खोल के, और उसमें 30,000 बचा। अब 30,000 पे 80% उसको कीजिए, ओनली 6,000 आ रहा। वो भी हम कोशिश कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को हम चिट्ठी लिखे हैं कि जो बाकी बच रहा है वो आप लोग दे दीजिए, जिससे कि जिनको जेड फ्री में मिल जाए। अच्छा, इसमें कुछ और भी चीजें हैं कि जो महिला उद्यमी है उनके लिए अलग से 10% और सब्सिडी है। I mean that will go to up to 90%. कवच मैंने बताया, ग्रेडेड इंसेंटिव की बात नहीं कर रहा है। टेस्टिंग के लिए हमने बताया कि आपको रिइंबर्समेंट मिलेगा, सब्सिडी और हैंड ऑन। अब ये समझिए, अभी क्या है कि जब हम बीमार पड़ते हैं, थोड़ा मूवमेंट नहीं कीजिए इस तरह से हॉल में तो उनसे डिस्टर्ब होता है। जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर इज ए कंसल्टेंट, है कि नहीं? उसी तरह से जब हम जेड स्कीम में सपोज कीजिए हमारे पास सिल्वर सर्टिफिकेशन, आई वांट टू टेक गोल्ड, तो हमें कंसल्टेंट की जरूरत पड़ सकती है जो कि हमको गाइड करेगा कि आप ये इम्प्रूव कीजिए, आप ऐसे ऐसे कीजिए। तो उसके लिए हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की हम बात करते हैं, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी हम लगाते हैं
जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कम हो रहा है ना। अपने इकाई के अंदर कुछ ऐसा इक्विपमेंट लगाते हैं तो वो टेक्नोलॉजी का भी रिइंबर्समेंट मिलेगा, दैट इज अप टू 3 लाख। मैंने बताया आपको फाइनेंशियल टेस्टिंग के लिए 50,000 तक मिलेगा, 75% ऑफ कॉस्ट बोल रहा है। कंसल्टेंसी के लिए 2 लाख और टेक्नोलॉजी ऑपरेशन के लिए 3 लाख। सोलर सिस्टम इसके अंदर आता होगा कि सोलर सिस्टम इसके अंदर आएगा। इसके अंदर वो डिवाइसेस आएंगी जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। कर रहे हैं हाँ, सोलर नहीं आ पाएगा अभी। क्या है कि इस पे QCI जो है ना, QCI को आपको प्रपोजल सबमिट करना पड़ेगा, वो उसको एग्जामिन करेगी। लेकिन अभी हमें बताया गया है कि वैसे डिवाइसेस जो कि विशेष करके इन्वायरमेंट फ्रेंडली कुछ इक्विपमेंट लगा रहे हैं, वो उसमें ज्यादा लग जाएगा। अब देखिए हमारी एक स्कीम है, डायरेक्टर साहब बता रहे थे कि इंटरनेशनल लेवल का अगर आप फेयर में जाते हैं तो वहां भी गवर्नमेंट जेड मीट वाला बेनिफिट दे रही है। हम बोल रहे हैं कि हमारा एक स्कीम है डिजिटल MSME। तो अगर हम जेड में ब्रॉन्ज सर्टिफाइड हैं तो डिजिटल MSME का ब्रॉन्ज सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा, गोल्ड के लिए गोल्ड फ्री मिलेगा। अब डिजिटल MSME क्या है? डिजिटल MSME मीन्स कि MSME को डिजिटली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए इसको भारत सरकार एक सॉफ्टवेयर बेस्ड बहुत सारे सपोर्ट दे रही है ना। इसको बोलते हैं जैसे कि आपका अकाउंटिंग के लिए आपने सुना होगा टैली सॉफ्टवेयर है जिसपे सारी अकाउंटिंग फ्री होती है ना। अगर आप टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं तो उस पर अकाउंटिंग आपका हो जाएगा। यस। उसी तरह से बहुत सारे मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हैं, वो हम लोग MSME को प्रोवाइड करते हैं थ्रू ए पोर्टल। उसके लिए एक इंडिया इंटरप्राइज पोर्टल को हम बना रहे हैं। इसका स्कीम का नाम है MSME को डिजिटल MSME, डिजिटली उसको कॉम्पिटेंट बनाना है। ERP सिस्टम बोलते हैं, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लान। आज MSME को रन करने के लिए बहुत सारे ऐसे सिस्टम की जरूरत होती है कि आप काम नहीं करेंगे, आपका सिस्टम शुरू कर। हम जाते हैं किसी शॉप पे, आइटम का नाम वो डालते हैं, क्वांटिटी डालते हैं, GST बिल आ जाता है। और वो जमाना चला गया कि मैनुअली कोई बिल बना रहा। उसी तरह से MSME का अकाउंटिंग हो गया, डिजाइनिंग हो गया, मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, उन सबको गवर्नमेंट डिजिटाइज कर रही है। तो ये फंक्शनल हो गया है या फिर अभी अंडर सर प्रोसेस इसके लिए क्या अगर जैसे वो कंसर्न्ड कंपनीज में डिफरेंट हो सकता है रिक्वायरमेंट, तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगी या हमें उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा एंड देन फाइनेंशियल असिस्टेंस? नहीं, जैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा। और आपको जैसे डिजिटल MSME का ब्रॉन्ज जो सब्सक्रिप्शन है, अगर आप ब्रॉन्ज सर्टिफाइड हैं तो ब्रॉन्ज आपको फ्री मिल जाएगा। उसमें सब्सक्रिप्शन बनाया हुआ है, सब्सक्रिप्शन समझ रहे हैं, मीन्स कि आपको इनरोल किया जाएगा। टाइप ऑफ सपोर्ट गवर्नमेंट देगी। अभी ये फंक्शनिंग नहीं है, दैट इज ए, लेकिन डिजिटल MSME स्कीम हमारी पुरानी है, बहुत जल्द इसको जो है ना जेड से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। बाकी जरूरी तो है ना MSME को, अगर आपको सस्टेन करना है तो डिजिटली तो उनको आना पड़ेगा ना। आज कौन सा MSME है जिसके पास डिजिटल सिस्टम नहीं मार्केटिंग का? हम जेम की बात करते हो, क्या है जेम तो डिजिटल ही है। हमने बात किया आपको कि बैंक में प्रोसेसिंग फी, रेट ऑफ इंटरेस्ट में छूट है, प्रेफरेंस इन लैंडिंग, आपको लोन जल्दी मिलेगा। अच्छा, रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे का तो रेलवे बोर्ड का ऑर्डर भी आ गया
रेलवे बोर्ड का ऑर्डर आ गया है। एक उद्यमी हमको फोन कर रहे थे मुंबई से कि सर हमको अगर बिहार में मटेरियल भेजना है तो हम बुकिंग कहाँ से करेंगे, हमको फैसिलिटी का नाम मिलेगा। जहाँ से आप इक्विपमेंट बुक कर रहे हैं जहाँ के लिए, रेलवे का तो ऑर्डर 30% उसमें दे रही है। क्या है कि चीजों को थोड़ा स्टीम आने में टाइम लगता है, लेकिन अभी स्टीम क्या है कि इनिशियल स्टेज में है। इनिशियल मत कहिए, मतलब कि जस्ट इट इज गेटिंग, हम लोग चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसको पॉपुलरिटी मिले, है ना। इसलिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे आपका डिजी लॉकर, जैसे डिजी लॉकर में आप रखते हैं ना, मालूम होगा आपको, डॉक्यूमेंट अपना डॉक्यूमेंट रखते हैं, तो जेन डिजी लॉकर से भी इंटीग्रेटेड, ठीक है। डिजी लॉकर पता होगा, जेट सर्टिफिकेट वाया एपीआई भी इंटीग्रेटेड विद डिजी लॉकर, ठीक है। अब कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए हम लोग वेबसाइट को पहले ओपन करेंगे। इट विल बेटर टू लर्न थ्रू वेबसाइट। जरा ऑनलाइन इसको वेबसाइट खोलना पड़ेगा, कहाँ जाइए, तभी आप समझ पाएंगे। इसका पोर्टल है j.msme.gov.in। आपको एक बुक मिला होगा, उसमें इसका लिखा हुआ है। और इसमें क्या है कि आपको एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। रजिस्ट्रेशन पोर्टल से हो जाता है। ये जरा जेट की पोर्टल खोलनी है। j.msme.gov.in। अब आप ऊपर एक्सप्लोर कीजिए। अब आप यहाँ देखिए, जेट सर्टिफिकेशन का है। यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं। हैंड होल्ड कंसल्टेंसी के बारे में हमने आपको कहा है ना। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर प्रोफेशनल, हमने बहुत सारे बिहार में प्रोफेशनल को भी ट्रेनिंग दिया है। हर प्रोग्राम में तो हम नहीं जा सकते हैं, है कि नहीं। तो स्कीम को ज्यादा पॉपुलराइज करना है तो एनपीसी के 2 अधिकारी और आईआईटी, उनको हमने ट्रेनिंग दिलवाया है। अब आप रजिस्टर वहां पे जाइए। अब देखिए, रजिस्टर यूजर पूछ रहा है। हमारा अगर पहले से आईडी है तो हमारा आईडी नहीं है, न्यू यूजर, रजिस्टर वहां पे जाइए। अब देखिए, अब पोर्टल आपसे पूछ रही है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है और मोबाइल नंबर जिससे लिंक है वो है, तो दीजिए उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर ये है तो हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड कीजिए। आप लोगों ने किया नहीं ना अभी तक? उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर बोलिए। सर्विसेज का है, मैन्युफैक्चरिंग का चाहिए। हाँ, किसी का भी मैन्युफैक्चरिंग। हाँ सर, मैन्युफैक्चरिंग। हाँ राइट, यहाँ ले आइए रश्मि जी, आपका तो मैन्युफैक्चरिंग है ना, आप कर लेंगे रजिस्टर जिस पे। आप दीजिए ना, आप भी दीजिए, एक एक करके करेंगे। यहाँ पर इस पे टाइप कीजिए, रुकिए देखिए। उद्यम बिहार, उद्यम बिहार, उद्यम डैश बिहार डैश उद्यम डैश बिहार, कैपिटल में, UDYAM, उद्यम डैश BR डैश डैश आ रहा है ना। हाँ ठीक है, आपको देखना है। डैश 25 डैश 41। यहाँ पर मोबाइल नंबर दीजिए। इसका मोबाइल नंबर क्या है सर? 8340 5400 आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक कीजिए। नीचे आइए, प्रोसीड। देखिए आपका क्या है कि आपका क्या है कि इंटरप्राइज का क्या नाम है? धर्मराज इंटरप्राइजेस। देखिए हमारा आ गया, आगे बढ़िए, नीचे स्क्रॉल, एड्रेस आ गया, आगे बढ़िए। आप क्या है कि उस यूनिट को सिलेक्ट कर लीजिए, वहां जाइए ऊपर में, ऊपर। हाँ नहीं, यहाँ पे सेलेक्ट दिस यूनिट, जहाँ पे ना धर्मराज इंटरप्राइजेस पे लाइक यस। और आइए
हाँ मैंने नहीं चाहिए। आपका जो एक्टिविटी क्या है, एक मिनट बोल, क्या बनाते हैं? सर मेरा चिप्स मेकिंग भी है और एक अरेंजमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट की है, उसको 10 नंबर। हाँ हाँ ठीक है, चलिए कंफर्म। अब देखिए आपका जेल रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आपको एक प्लेस दिलवाएंगे, प्लेस दिलवाने के बाद आपको 10,000 मिलेगा। अब देखिए आपका OTP गया, ईमेल आईडी बोली तो अपना सही सही इसमें लिखा होगा बिपिन स्मॉल लिखिए ना ईमेल आईडी गलत हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, जिनका पासपोर्ट जाएगा। एक बार देख लीजिए सर बिपिन आर्या@gmail.com। हाँ कंफर्म कीजिए, फिर लिखिए। कॉपी पेस्ट कर दीजिए। देखिए सिस्टम कैसा बना है, आपको डिजिटल है सारा चीज। और आ जाइए ना, OTP कुछ नहीं आता है, क्या नीचे कीजिए। हाँ जाइए। अब देखिए ये प्लेस आप ले रहे हैं, आगे कीजिए। We undertake to confirm knowledge of zero defect in our enterprise and ensure that our processes are environmentally sound and socially responsible, है ना? उसके बाद प्लेस पे आप क्लिक कीजिए, इनको दे दीजिए माउस, प्लेस पे आप क्लिक कीजिए। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, इसका देखिए है ना। अब क्या है देखिए, इसमें क्या आ रहा है, ज्वाइनिंग रिवार्ड आपको मिल गया 10,000, ठीक है। आपके मोबाइल पे जो आपने ईमेल दिया है वहां आपका यूजर आईडी पासवर्ड जा चुका है, ठीक है। आप रख लीजिए, इसमें ओपन कीजिए, स्क्रॉल कीजिए। अब किसी दूसरी इकाई का लाइए। हाँ सर, एक एक करके मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ पहले, हाँ अच्छा लाइव पहले नहीं, गो टू लॉगिन भी, हाँ 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 देखिए उद्यम -BR मोबाइल है हमारा, उद्यम कैपिटल में -BR H नहीं, UDYAM उद्यम -BR 26 है, 26 3043। मोबाइल नंबर क्या है? 7564 98 627। हाँ अब देखिए कहाँ गया, असीम ड्रेसेस है ना, असीम ड्रेसेस है वाइस है, बढ़िया चलिए। मैन्युफैक्चरिंग क्या करते हैं, टेक्सटाइल। ईमेल आईडी स्मॉल में लिखना है, TRESSING XPRESS ऑफिशियल OFFICIAL OFF में हाँ I क्लिक नहीं कीजिएगा, OFFI है ना, OFFICIAL gmail.com। जीमेल एक और मेल आईडी फिर। अब देखिए रुकिए, मेल आईडी देखिए अगर आपका गलत हो जाएगा ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम है। मेल आईडी को चेक करना है। हाँ
दीजिए। ये प्लेज है, आप इस पे क्लिक कीजिए। आपका भी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया और इसका जो है नहीं, ब्राउन नहीं मिला है आपको, अभी आप रजिस्टर हुए हैं, हम बताते हैं आगे प्रोसेस। इसके आगे प्रोसेस बताते हैं। जैसे अभी क्या है कि आपको चले गए क्या उनका रजिस्ट्रेशन किए थे? अच्छा, आप अपना मेल चेक कीजिए पहले, ठीक है? आप बैठिए सीट पे, आप मेल चेक कीजिए, मेल चेक कीजिए, उस पर देखिए यूजर आईडी पासवर्ड क्या है। अभी 2 आदमी का रजिस्ट्रेशन हुआ ना? मैंने कर लिया। अच्छा, आप रजिस्ट्रेशन कर लिए? खुद से किया। हाँ, तो खुद से ये 2 घंटे का काम है। अब एक और अभी हम कर रहे हैं, लिखिए आ गया ना? अब क्या करना है, एक मिनट रुक जाइए। उस यूजर आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है और ब्रॉन्ज के लिए यू हैव टू डाउनलोड ए मोबाइल ऐप, है ना? ZMSME मोबाइल ऐप है, प्ले स्टोर से मिल जाएगा। और जब आप इकाई पे जाएंगे तो इकाई पे ही बैठ के, क्योंकि जो मोबाइल ऐप है दैट इज जियो टैगिंग, आप फोटो अगर अपलोड कर रहे हैं तो ये सिस्टम देख रहा है कि फोटो कहाँ की अपलोड की जाएगी। जो उद्यम बना हुआ है जिस इकाई का, उसी पे जाके आपको करना है। नटसेल में ये है कि आप कोई पहले से खींचा हुआ फोटो उस पर अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है? ऑन द स्पॉट जाके एंटरप्रेन्योर्स का जो प्रमोटर है उसका भी फोटो आनी चाहिए, यानी कि मेरे पास टायर लगा हुआ पासपोर्ट साइज है, मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। प्लांट में जिस स्टेज में जिस जैसे दिख रहा है वही एग्जैक्ट फोटो खिंचाएगा और वो अपलोड लेगा, ये नहीं लेगा। For example, अभी मैं बताऊंगा। MSME has set up, so they don't have that equipment like stand उद्यम डैश दिया, so what should they do? How do you maintain that minimum viable condition or So safety? for example, this is a newly has to be. for example the yes. उद्यम Every MSME डैश दिया, is expected from the units that they are having maintaining at least डैश bare minimum amenities for their Yes. workers or for their 000. employees, including the promoter himself also. 3294। So that means they have to purchase it. They have to purchase. They have to हाँ, be some रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर 99 That's how you ensure that he is getting a good hygienic condition, because he is working for you. He is getting money for you. He is making your unit profitable. In return, this is your social responsibility. 733. Yes, right. Have you हाँ, चलिए। I registered it already. They just asked for few equipment which we don't have. So I think that on the purchase stage. And फिर आप सेलेक्ट कीजिए श्वेता ट्रेडर्स, proceed further. आपका मैन्युफैक्चरिंग है ना? हाँ, चलिए आप देखिए तीसरा इनका रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं। आपका देखिए बहुत सारे उद्यमी जब करने लगते हैं तो उनका आता है सर्विस, तो सर्विस का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कंफर्म एंड प्रोसीड, ईमेल आईडी बोलिए। आप ये बात पहली बात है। अब आप आगे बढ़िए किसके लिए? ब्रॉन्ज के लिए। नाउ यू आर रजिस्टर्ड फॉर, यू कैन प्रोसीड फॉर ब्रॉन्ज। हम डायरेक्ट जा सकते हैं सिल्वर पे भी, लेकिन बेटर है कि पहले हम, है ना? अब आप आते हैं सर एक क्वेश्चन, अभी मैं जस्ट कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद प्रेजेंटेशन जो था उस पे आ जाएगा। सक्सेसफुल हुआ। ये हमारा जो हुआ है वो कैसा
हाँ, अब क्या ऐसा आगे बढ़िए। अब क्या है कि हमने आपको प्रोसेस बता दिया, उससे आप आगे बढ़िए और काम कीजिए। अब इसमें आगे बढ़िए आप। ये सारी चीजें हैं, देखिए बोल रहा है, यही चीज है जो भी बात मत कीजिए आपस में। अभी जो हमने किया वही चीजें दिखा रहा है प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन देखने से उतना क्लियर नहीं होता है। आगे बढ़िए, वही चीज है, आगे बढ़िए। प्लेस भी दिया, प्लेस दिया, आगे बढ़िए। यही सर्टिफिकेट आपको गया है मोबाइल पे, ठीक है ना? अब आप छोड़ दीजिए। यही सर्टिफिकेट आपको ईमेल पे गया हुआ है। इसको क्या हम लोग बोलते हैं? दैट इज ए प्लेस जो आपने दिया है, डेट ऑफ प्लेस भी आ रहा है ना? आपको मेल पे गया ये सब चीज, आईडी पासवर्ड। अब हमने आपको क्या बताया कि आपको पहले गूगल प्ले स्टोर दिखा रहे ना, वहां पे देखिए लिखा ना गूगल प्ले साइड में आ रहा है ना मतलब, वहां से आपको क्या डाउनलोड करना है? ZMSV मोबाइल ऐप, ठीक है ना? उसको आप डाउनलोड करके ना आपको फिर प्रोसीड करना है, लॉगिन कीजिएगा। हम लोग को जब ट्रेनिंग दिया जा रहा था तो हम लोग लॉगिन करके मतलब बोला कि आप कोई भी फोटो अपलोड कीजिए, इससे कुछ होना नहीं, खाली उसको सबमिट कीजिए, ठीक है? सबमिट जहां आप कर दिए तो ये चीजें हैं, ये सर्टिफिकेट है। देखिए ब्रॉन्ज का ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा, सिल्वर ऐसा मिलेगा, गोल्ड ऐसा मिलेगा। सारे आपको हमने बता दिया, प्रोसेस बता दिया। थैंक यू। सर सर्विस के लिए कब आएगा? सर्विस का आएगा, और एक अभी इसका पोर्टल पे जाइए, थोड़ा सा आपको और हम दिखला दें कि ज्यादा अगर आप वॉच करना चाहते हैं तो हम लोग कर रहे थे, नहीं हो रहा था। नहीं, इस फोटो को होम पे इस पे कुछ चीजें है। अब देखिए ये बता रहा है, देखिए कि कितना हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, 22,000। ब्रॉन्ज 804 को मिला, सिल्वर है, गोल्ड है ना? आपको ज्यादा सीखना है तो आप इसको क्लिक करके, यहाँ पे साउंड पता नहीं आएगा कि नहीं, साउंड आप देख सकते हैं। तो ये एक सिंपल बनाया गया है स्कीम को, और क्लिक कीजिए। एनीवे, तो ये मतलब कुछ वीडियो भी डाले हुए हैं जेट के पोर्टल पे ही, है ना? पोर्टल का एड्रेस आप लोग को बुक मिला है ना? हाँ, तो उसको आप लोग देखिए और मेरा मोबाइल नंबर रखिए। वैसे तो नाउ आई बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम देयर, लेकिन आपको जब भी मदद का जरूरत हो कुछ इस टाइप से तो यू कैन आस्क मी। गूगल से सीधे खोलिए। हाँ, नवीन कुमार मेरा नाम है, असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 1। स्कूल पे कैसे पहुंच सकता है? 95720 20380। कौन सा गेम सर? 95720 20380। तो इसी के साथ मैं अपने प्रेजेंटेशन को समाप्त करता हूं, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना पैसेंस लिया आपने सुना। और जो लोग रजिस्टर्ड हुए हैं वो आगे बढ़े, ग्राउंड के लिए अप्लाई कीजिए, और कोई प्रॉब्लम होगा आप हमें रिवर्ट बैक कर सकते हैं। धन्यवाद। ये ट्रेनिंग वीडियो आप देख सकते हैं। And finally, we just want to morning everyone. देखिए ये QCI के डायरेक्टर हो गए हैं। Today,
discuss very briefly और कोई प्रोग्राम कॉल बैक कर talk about the process. फाइंड आउट थैंक यू। आप थैंक्स कर लिया? Best for everyone. बुला लिया जैसे So nice to get अरे छोड़ो, to know how प्लीज आप ही करते हैं। any questions. इसके अलावा दूसरा So with this, जिसको बुक नहीं मिला है, एक बुक हमारे पास है। पीछे प्रोग्राम हम लोगों ने आज यहाँ पे अरेंज किया था आप लोगों के लिए, जितने भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंक्यूबेटर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं और एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और जो यहाँ के प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं इस कॉलेज के, स्टीम कॉलेज के, उन सबके हम लोग बिफोर इसको वाइंड अप करें, हम लोग चाहते हैं कि अगर आपके कुछ क्वेश्चंस जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं हमारे एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो हम लोग चाहेंगे उसको भी हम लोग एड्रेस करें। दिस इज अ फोरम जहाँ पे हम लोग जो भी क्वेरीज आपके हैं उसको एड्रेस कर सकते हैं और अगर कोई दुविधा आपके मन में हो तो आप बेझिझक पूछिए। हाँ, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है? बैठिए सुनिए। एक क्वेश्चन मेरा था सर। हाँ। आपने बताया था कंसल्टेंसी। हाँ। उसमें 3 लाख तक है। जी। तो जैसे अगर हम कुछ बना रहे हैं और उसमें हम ऐसा कुछ इक्विपमेंट्स लगाएं कि वो मशीन बेस्ड हो जाए, मशीन का, तो उसके लिए भी क्या होगा? देखिए, कंसल्टेंसी किस चीज के लिए आपको चाहिए? ये संबंधित कंसल्टेंसी हम आपको देंगे ना। जेट सर्टिफिकेशन आपने जैसे ले रहे हैं, तो अभी मान लीजिए हमारे पास ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड कुछ भी नहीं है, तो हम जेट सर्टिफाइड तो नहीं है। जब एक बार हम जेट सर्टिफाइड मान लीजिए सिल्वर पे आ गए और हमको गोल्ड पे जाना है ना, तो हमको सिल्वर से गोल्ड पे जाने के लिए कुछ इनपुट चाहिए होगा। हाँ, वही चीज तो जनरल कंसल्टेंसी जैसे अगर मैं हमारा जो भी सेटअप है, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, वो बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, हाँ, ठीक है, हम उसको और अपग्रेड करना चाहते हैं कि हम और गोल्ड तक जा सके, तो क्या उसके लिए? नहीं, तो पहले आप ब्रॉन्ज या सिल्वर लीजिएगा तभी आप एलिजिबल होइएगा। ठीक है। दैट इज फॉर जेल रजिस्टर्ड यूनिट। न्यू यूनिट को कंसल्टेंसी मिलेगा आपको। देखिए, आप पोर्टल को ध्यान से देखिए और जो भी आपको क्वेरी होगा QCI को मेल भी आप भेज सकते हैं। आप हम लोग को मेल कीजिए, हमारे ऑफिस को, और हमारा मोबाइल नंबर रखिए। पहले आप कोई भी सर्टिफिकेशन आप प्राप्त कीजिए। आप ब्रॉन्ज से शुरुआत कीजिए, सिल्वर पे भी जा सकते हैं। कंसल्टेंसी है आपको अपग्रेड, जो आपके सर्टिफिकेट है उसके अपग्रेडेशन में हेल्प करेगा। जो QCI पैनल कंसल्टेंट्स हैं वो आपको असिस्ट करेगा, उसका जो कंसल्टेंसी चार्जेज है कोई नहीं, मतलब जेट सर्टिफाइड वीक के लिए है। जेट सर्टिफाइड नहीं, मैं समझी नहीं कि हम अपने आप को नहीं, आज से अपना क्वेश्चन पूछिए। कोई प्रश्न कर रहे हैं, सुनिए ध्यान से, पूछिए। हाँ, आ रही आवाज? हेलो। हाँ, बोलिए। हेलो। हाँ, बोलिए ना, आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल पूछिए। आज कितने बार से बोल रहे हैं? हेलो। हाँ हाँ, पूछिए 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 ना, आपका आवाज हम लोग सुन रहे हैं। हेलो। माइक नहीं काम कर रहा है। काम कर रहा है सर, जा रहा है। आप वहाँ से नजदीक आके बोलते हैं। नहीं सर, आवाज क्लियर जा रही है। आपका जो भी प्रश्न है आप पूछिए। आज कितने बार से बोल रहे हैं? आज कितने बार से बोल रहे हैं? हेलो। अरे आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। माइक चेक कर लीजिए। हाँ सर, मुझे ये बात जेबी सर्टिफिकेशन का थोड़ा मुझे थोड़ा अच्छे समझा पाएंगे सर? हेलो। हाँ, बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? वो
बोल रहा हूँ सर कि जेडी सर्टिफिकेशन जो आपका है उसका बेनिफिट हमें कितनी जल्दी मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो थोड़ा मुझे क्लियर समझना था। बेनिफिट तो पहले आपको जब सर्टिफिकेशन आप प्राप्त करेंगे तो उसका सर्टिफिकेशन में ही सब्सिडी 80% की है। पहला बेनिफिट तो यही है। अब दूसरा बेनिफिट मैंने आपको बताया कि बैंक में प्रोसेसिंग फी नहीं लगेगा, आपको रेलवे पार्सल में छूट है। उसके बाद आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए 3 लाख की प्रपोजल आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन के लिए 50,000 का रिइंबर्समेंट मिल सकता है। और अभी बिहार से बहुत सारे प्रपोजल गए भी हैं, उसमें से कुछ अप्रूव भी हुए। कुछ बैंकों में आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.5% का, उसमें भी वेवर है। बिहार के भी कुछ बैंकों, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक के लोगों ने जेट सर्टिफाइड MSMEs के लिए 0.5% का इंटरेस्ट रेट है, उसको भी वेवर किया है। आप पोर्टल पे विजिट करेंगे, आपको सारे स्टेट वाइज सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनका और किस स्टेट में क्या ऑफर्स है वो सारा चीज आपको मिल जाएगा। मैं एक चीज और पूछ रहा था कि जेडी सर्टिफिकेशन जो है वो मतलब सेल्फ है कि हमने खुद अप्लाई कर दिए सर्टिफाइड हो जाता है, तो प्रोसेस ये जेट सर्टिफिकेशन में जो ब्रॉन्ज लेवल का सर्टिफिकेशन है वो बिल्कुल आसान है। सिर्फ आपको कुछ फोटोग्राफ अपलोड करने हैं और अंडरटेकिंग दे दी है कि हमारे पास सारे कंप्लायंसेस हैं। किसका फोटोग्राफ? फोटोग्राफ आपको अपनी इकाई का, अपने यूनिट का जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है। फोटोग्राफ किसका अपलोड करना है? अपनी इकाई का, अपने यूनिट का, प्रेमाइसेस का। वो अपनी यूनिट का अपलोड करना है क्या? स्वच्छ वर्क प्लेस की बात कर रही है, तो स्वच्छ वर्क प्लेस आपका जो यूनिट का फोटोग्राफ है वर्क प्लेस का। आप अपना हेडफोन निकालिए पहले, डिस्टॉर्शन हो रहा है, हेडफोन निकालिए अपना। हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ सुन रहे हैं, बोलिए। बोल रहा हूँ सर कि जैसे ये जो सर्टिफिकेशन में अपलोड करने के लिए आप जो फोटो बता रहे हैं, वो जो फोटो है वो अपने ऑफिस का अपलोड करना है क्या? हाँ हाँ, आपके जैसे फैक्ट्री का फैक्ट्री प्रेमाइसेस जहाँ उसमें रहते हैं ना कि स्वच्छ वर्क प्लेस दिखाएंगे, तो आपका जो वर्क प्लेस है जहाँ काम होता है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसका। हाँ ठीक है सर। मैं ये बोल रहा हूँ सर। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सुन रहे हैं, बोलिए। सर कि जेडी सर्टिफिकेशन जो है ठीक है, अपने तरीके से तो अभी आपका ये तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आपका आ रहा है। चलिए चलिए छोड़। आप बोल रहा था सर। हेलो। हाँ बोलिए। आप नंबर रखिए, आप नंबर रखिए, फोन से बात कीजिएगा, ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चन ले लीजिए, फोन पे क्वेश्चन ले लीजिए। नहीं फोन पे वैसे ठीक है। तो और जिनका क्वेरी नहीं, और कुछ क्वेरीज हैं कि नहीं? हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ आप क्लिक पर कीजिए। हेलो सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। सर है कि जेड और जी में क्या अंतर है? जी में रजिस्ट्रेशन कराने में और जेड में? जेम रजिस्ट्रेशन है कि अगर गवर्नमेंट का परचेज, जी पोर्टल भी है। हाँ जेम पोर्टल का है कि अगर गवर्नमेंट परचेज में आप हिस्सा बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट को कोई सामान सप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए जेम है। और जेड है कि एक
सिस्टम सर्टिफिकेशन है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आप क्वालिटी सामान बनाते हैं, मतलब दैट इज ए क्वालिटी सर्टिफिकेशन। दोनों अलग अलग है। जेम है कि अगर आप कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सामान सप्लाई करना चाहते हैं। क्लियर हुआ? जेड रजिस्ट्रेशन कराने में हम लोग को बेनिफिट रहेगा सर जेड? हाँ हाँ, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? जी सर, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। चलिए क्लोज कीजिए, थैंक यू वेरी मच। नहीं एजुकेशन मेरा है। तो अभी फिलहाल ये आपके लिए नहीं है, जो मैन्युफैक्चरिंग में है, जो कोई अभी ये जेड सर्टिफिकेशन स्कीम फिलहाल आपके लिए नहीं है, वैसे लोगों के लिए है जो कोई प्रोडक्ट उत्पादन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, आप एजुकेशन मतलब आप सर्विस सेक्टर में, सर्विस के लिए अभी ये एप्लीकेबल नहीं है। उसके लिए जेड है। हाँ, उसके लिए जेड है। जी एजुकेशन, जी सर जैसा एजुकेशन के लिए अब ये नहीं है, ये कोई मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन क्षेत्र में अगर आप रहता हो, ठीक है? इसी नोट पे जितने आप सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ से प्रोग्राम में आए हैं, इम्पोर्टेंट टाइम दिया हमें। इनफैक्ट मैं इसके लिए अपने ऑफिस की ओर से, अपने पर्सनल भी आपसे अपना ग्रेटिट्यूड आप लोगों को एक्सप्रेस करता हूँ, और आशा करता हूँ कि जो सेशन हम लोगों का रहा है लगभग 2 घंटे का, बेनिफिशियल रहा है आप लोगों के लिए। और दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। हम लोग यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं जेड सर्टिफिकेशन की ओर, ये पहला स्टेज पे। और जो लोग आप लोग मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे, हम पूरा हमारा ऑफिस जो आपके साथ इनकॉर्पोरेटेड रहेगा, पूरा साथ में हैंड टू हैंड हमारा ऑफिस आपके साथ रहेगा। और CIMP हमारा रिकॉग्नाइज्ड घोष इंस्टीट्यूशन, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप के यहाँ पे एक्टिविटीज होंगे, हमारा पूरा उसमें सपोर्ट रहेगा। और टाइम टू टाइम हम लोग इस इंस्टीट्यूशन में भी बहुत सारे और ऐसे अवेयरनेस सेमिनार करते रहेंगे, और जिसमें आप लोगों के पार्टिसिपेशन का हम लोग एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि आप लोग रहेंगे। और जो भी बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस मिनिस्ट्री के थ्रू आप लोगों के लिए एक्सटेंड कर रही है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आप सब लोगों को यहाँ पे फैसिलिटेट कर पाए, हैंड होल्ड कर पाए। और यही हमारी सबसे बड़ी रोल है कि हम आपको एक पुश देना चाहते हैं। वी आर जस्ट वर्किंग एज ए टॉर्च बेरर, क्योंकि हम आपको रास्ता जरूर बता सकते हैं कि कैसे आप एक्सेल कर सकते हैं अपने पूरे एंडेवर्स में। तो विद दिस नोट आई रियली थैंक्स ऑल ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू, जिन्होंने इस प्रोग्राम में आकर के इस प्रोग्राम को सक्सेस किया है, एंड थैंक यू वेरी मच।